Good morning to all of you. Class 11th Economics. In class 11th Economics, we have already discussed about the chapter 1, Indian economy on the eve of independence. Indian economy on the eve of independence. So we have talked about agriculture sector. We have talked about GDP, what was the importance in GDP, what was the importance of agriculture sector. Then we have already discussed about the importance of secondary sector, capital goods. फिर हमने देखा हमने कोलोब्रेशन करा था. We have collaborated with important countries like Russia, France, Germany, America, and we have settled or we have established भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाल्को हिंदुस्तान, डिस्को दुर्गापुर आयरन एंड स्टील कंपनी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स बहल विद द कोलैबोरेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज बिकॉज वी वर बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी. हम एक्चुअली टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थे, तो हमें टेक्नोलॉजी दूसरों से उधार लेना पड़ी. वी हैव बोरोड द टेक्नोलॉजी. नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम. एक्चुअली पर कैपिटा इनकम, दिस फॉर्मूला was first derived by Dadabhai Naoroji. He was the member of parliament of Britain. Dadabhai Naoroji, Congress person, president of Congress 1905. So he believed that उन्होंने एक ऐसा कि जैसे like in prison and prisoners, आपने देखा होगा जेल में प्रति कैदी को कुछ खाना दिया जाता है. वो जो भी खाना है वो एक एज और लिमिट के अनुसार दिया जाता है कि इतने ग्राम दाल होगी, इतने ग्राम आटा होगा, है ना, इतनी सब्जी होगी. So he concentrated on the per person कि जब हम इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं कि प्रति कैदी को कितना दिया जाना चाहिए फूड पर डे, तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर कैपिटा, पर प्रति व्यक्ति आय इंडिया में कितनी कमाता है, कैसी है, क्या है. सो दे हैव गिवन द आइडिया ऑफ पर कैपिटा इनकम. दैट वाज फर्स्ट आइडिया गिवन बाय पर कैपिटा इनकम. इट इज ऑल्सो नोन एज PCI, दादाभाई नौरोजी. As well as William Digby second, very important, he was economist, right, British economist, William Digby, and very important Indian professor, Professor V.K.R.V. Rao, Professor Desai. They together work on per capita income, प्रति व्यक्ति आय. ओके, सो देयर एम वाज, उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट, और दैट टाइम हाउ वी कुड कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम. सो अ सिंपल दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बाय, V.K.R.V. Rao, Professor Desai, they have prepared a one formula that we have already discussed about GDP, gross domestic products, products from all three sectors, primary sector, industrial sector and service sector, right? Products, all the products converted into money, है ना, that is called national income. That is called national income. And when national income divided by total population is known as PCI, per capita. What is national income? The income which we generated from all three sectors, primary sector, secondary sector and tertiary sector in a particular year. मान लो एक साल में
मान लो हमने प्राइमरी सेक्टर से 35 रुपीज़ अर्न करे, मतलब 35 रुपीज़ मीन्स व्हाट वी डिड, हमने जो भी प्रोडक्शन किया था, है ना, गेहूँ, चावल, दाल, माइन, इन सबको हमने कन्वर्ट कर लिया मनी में। तो 1 ईयर, इन ए ईयर प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस 35 रुपीज़ प्रोडक्ट, 25 रुपीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री ने 25 रुपये का उत्पादन किया, और 40 रुपीज़ प्रोडक्शन गिवन बाय सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, बट सर्विस प्रोड्यूस करता है, तो हम उस सर्विस को कैलकुलेट करते हैं इनकम में। जैसे अ डॉक्टर इज देयर, वन डॉक्टर, ही अर्न्स 20 लाख रुपीज़ पर ईयर, वो अपनी इनकम टैक्स भरता है कि मैं 20 लाख रुपए कमाता हूँ, इट मीन्स दैट उसने 20 लाख रुपए की सर्विस दी है। सो टोटल 100, ओके 100, सो नेशनल इनकम फॉर 1 ईयर 100। सपोज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 100 people are there, divided is equal to 1. It means per person average, it is always average, per person earns 1 rupee in a year, per person earns 1 rupee in a year. Why it is called average? Because some people are earning more than 1, some people are earning less than 1, but average of country is 1. Now latest data is different one, state wise was differ, जैसे पंजाब की पर कैपिटा इनकम मोर देन 45 है, बिहार की 28 है, सो डिफरेंट पर कैपिटा इनकम इज देयर। आफ्टर पर कैपिटा इनकम, द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब हम जनसंख्या की बात करते हैं, whenever we talked about जनसंख्या, whenever we talked about, है ना, काउंटिंग ऑफ हेड, जब हम गिनते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसस। पर पर्सन में भी काउंट सेंसस, जिसको कहते हैं जनगणना, व्हाट इज कॉल्ड जनगणना। दिस वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1881 इन ब्रिटिश इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1881 फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड। 1881 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार भारतीयों की जनगणना करी थी, काउंटिंग ऑफ हेड, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर। देन एवरी 10 ईयर वी हैव स्टार्टेड, सो 2011 वी हैव डन अवर census. Now next year after 6 months, this is the August, okay, after 6 months you will see the next census of India, that is 2021, 2021, 2021. So in demographic system or demographic condition, first we have started the understanding of IMR, infant mortality rate, शिशु मृत्यु दर, infant mortality rate, शिशु मृत्यु दर। Obviously during the British time IMR was very high, it was lying between 218 to 275, means per 1000 in a year, per 1000 child who has got birth, एक साल में जिन 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से लगभग 218 से 275 बच्चे मर जाते थे। मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। इट मीन्स ड्यू टू लेक ऑफ मेडिकल, ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लेक ऑफ अदर फैसिलिटीज, राइट। सो आवर मेन एम वॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इम्प्रूव द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एज वेल एज सेकंड इंपॉर्टेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी, मीन्स एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो, ओनली इट वॉज 48, मतलब एवरेज एक आदमी भारत में 48 साल तक जी पाता था, एवरेज। कोई 80 जीता था तो कोई 20 में मर जाता था, एवरेज, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, लेक ऑफ अवेयरनेस, लेक ऑफ लिटरेसी, है ना, एंड पॉपुलेशन वॉज वेरी हाई दैट टाइम। nobody was understanding that children should get the birth in a proper way, so life expectancy was very low. So main aim, हमारा मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाएं
और IMR को कम करें, शिशु मृत्यु दर को कम करें. सो वी हैव स्टार्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़. आपने देखा होगा देयर इज अ वन जच्चा बच्चा कार्ड आजकल बनता है, फ्री इम्यूनाइजेशन, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री आयरन टेबलेट, फ्री कैल्शियम टेबलेट, है ना. द फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, बिफोर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस गिवन टू हर, अलग अलग प्रकार के उसको, है ना, जिसको कहा जाता है सहूलियत दी जाती है ना. मिड डे मील के थ्रू बच्चों को भोजन दिया जाता है. तो मेन एम वॉज हाउ टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड टू इम्प्रूव द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. एज वेल एज वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज देयर, मदर्स मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर, मदर्स मोर्टेलिटी रेट. हाउ मेनी pregnant women died on the table during the giving birth to child. शिशु जैसे शिशु मृत्यु दर होता है ऐसे माताओं का भी मृत्यु दर है, क्योंकि बहुत सारे दैट टाइम इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था, तब बहुत सारी महिलाएं टेबल पर ही दम तोड़ दी थी प्रेगनेंसी में, बिफोर गिविंग द बर्थ और आफ्टर गिविंग द बर्थ, बिकॉज lack of education, lack of literacy, lack of medical facilities and lack of other PHC hospitals. It could be counted on 1 lakh. ये 1 लाख में गिनी जाती पर 1 लाख. हाउ मेनी? और IMR जो है वो 1000 पे है. सो इन इंडिया दैट टाइम पर 1 लाख 750 मदर्स डाइड और प्रेग्नेंट लेडी डाइड after giving the birth or during the pregnancy, so during the delivery. So it was the most important part for a country that to improve the demographic condition. After demographic condition, the most important part is occupational structure. Occupational structure. It means that we have a 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मतलब कार्य. जैसे आई आस्क्ड यू कि आपके पापा क्या काम करते हैं, आपके पास सर बैंक में है, इट मीन्स हिज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन सर्विस सेक्टर. समबडी सेज कि सर मेरे फादर की फैक्ट्री, इट मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर. समबडी विल से कि सर माय फादर इज अ फार्मर, इट मीन्स इन प्राइमरी सेक्टर. सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कितने लोग किस सेक्टर में काम करते हैं. तो प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, tertiary sector that is called service sector. That time, eve of that independence, 70 to 75% people are working or they were working in primary sector. We have already discussed this guy's unemployment, कोई काम नहीं था इसलिए वो लोग खेत में चले गए. Industrial sector was only 10 to 15%. वेरी लो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कमज़ोर था. दैट्स व्हाई. एंड टर्शियरी सेक्टर्स 15 to 20%. सो दिस वाज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दैट टाइम. इफ नाउ यू विल सी, इफ यू विल गो थ्रू विकिपीडिया, यू विल सी द लेटेस्ट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. दे विल शो यू ऑन पाई चार्ट एक सर्कल. देन यू विल रियली सरप्राइज दैट यू फेल्ट दैट सर primary sector reduced, secondary sector bit grown up, but most of the high arose in tertiary sector. सबसे ज़्यादा जॉब हमने जो दिया है लोगों को वो दिया है tertiary sector. इसका रीज़न है tertiary sector absorb unskilled and skilled both. पढ़े लिखों को भी ले लेता है और कम पढ़े लिखों को या अनपढ़ों को भी ले लेता है. But in India, the most employment absorbing sector is primary sector. So we have discussed about number 1, per capita income, that was first given by Dadabhai Naoroji, Professor V.K.R.B. Rao, William Digby, Professor Desai. How to calculate per capita income and national income divided by population. Then we have learned about the demographic situation, demographic condition, infant mortality rate, mother's mortality rate, then life expectancy, medical facilities. Then we have talked about the importance of occupational structure and different types of their working system. Thank you.